रणधीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा श्री राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो टुडे हम भागवतम के नवे स्कंद में संक्षिप्त रूप में रामायण का वर्णन किया गया है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर वर्स है रामचंद्र जी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी है वहां पे। सो वी विल लुक एट दैट। टुडे प्राइमरीली I'll share my screen, just give me a second. So it is from the 9th canto, 11th chapter, Lord Ramchandra rules the world. Text 23. Yeah. 23, so share the screen. If you want, you can repeat after me. पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् अनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते पुरुषो रामचरितम् श्रवणेरुपधारयन् अनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। Translation. O King Parikshit, anyone who receives the narrations concerning the characteristic of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be free from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. Purport. Here in this material world, everyone is envious of someone else. Even in religious life, it is sometimes found that if one devotee is advanced in spiritual activities, other devotees are envious of him. Such envious devotees are not completely freed from the bondage of birth and death. As long as one is not completely free from the cause of birth and death, one cannot enter the Sanatan Dharma or the eternal pastimes of the Lord. One becomes envious because of being influenced by the designations of the body, but the liberated devotee has nothing to do with the body and therefore is completely on the transcendental platform. A devotee is never envious of anyone, even his enemy, because the devotee knows that the Lord is the supreme protector. He thinks, what harm can the so-called enemy do? Thus, a devotee is confident about his protection. The Lord says, Ye yatha mam prapadyante tam sathaiva bhajamyaham. According to the proportion of one surrender unto me, I respond accordingly. A devotee must therefore be completely free from envy, especially of other devotees. To envy other devotees is a great offense, a Vaishnava aparadh. A devotee who constantly engages in hearing and chanting, Shravan Kirtan, is certainly freed from the disease of envy, and thus he becomes eligible to go back home, back to Godhead. So don't worry if you found this purport heavy. I'll be breaking it down and explaining it in detail as we share the different pastimes of Lord Ramchandra and Hanumanji. Okay, so we'll start with the prayers.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। Just give me 1 second. Okay. Thank you once again for joining. As we all know, on 10th of April was Ram Navami, the Chaitra Shukla Pratipada, the day when the most auspicious day when Lord Ramchandra was born or appeared in this world. Rather, the Lord is never born, he appears. So, some of you may not understand what I mean by appear. So, if you don't understand the difference between appearance and birth, please type DU, don't understand, in the chat box. If you understand the difference between birth and appearance, what is the difference, then don't type anything. If you don't understand the difference between birth and appearance, then type DU in the chat box. U means you'll understand. Okay? DU means you don't understand. Okay. Okay. If you say understand, then I will ask you to explain. Okay. Wait. I'll give you a chance. So first, okay. I would like, request everyone to participate and reply in the chat box so that we can make this session interactive, interesting, because it's not that because I am speaking, I am the only one who's going to teach you something, but rather, we are going to discuss together and learn something from each other. Okay. It's that way. And also, but we will, whatever we learn has to be scripturally bona fide. What do I mean by scripturally bona fide is that whatever we say is not based on our interpretation or our judgment or our own mental concoction. When we refer to scriptures, when we refer to spiritual knowledge, like we're talking about the concept of the difference between birth and appearance. So in that way, we need to scientifically and technically understand the difference. Yeah, you're right, Ajit. Yes. So we will try to understand it from the systematic study of Bhagavad Gita also today, and from the stories and the pastimes of the Lord as well. So ये समझना बहुत जरूरी है हमको, स्पिरिचुअल चीजें, ठीक है? Like, if you ask in India to some person that, can you tell me something about God, or भगवान कौन है, भगवान क्या है, spirituality क्या है,
then people will give you hundreds of opinions, right? People are ready to give you all opinions, though they may actually not be like, conversant in that, right? If I ask someone, can you tell me about bionics engineering? Bionics engineering के अंदर क्या क्या होता है, कैसे टेक्निकली एक रोबोट टेक्निकली कैसे काम करता है, ठीक है? So I guess everybody in this group will not be ready to answer that question. They'll say that no, it's not my field, I will not be able to answer that. और if I ask कि गॉल ब्लैडर का जब सर्जरी करते हैं तो गॉल ब्लैडर का सर्जरी में कैसे एनेस्थीसिया देते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन दैट? If I ask that to you, then you may say that that is not my field and I will pass it on to others, right? But in India, when people ask कि भगवान कौन है, spirituality क्या है, God क्या है, and who am I, ये सब जानने के लिए, then people have thousands of opinions, right? So these opinions are referred to as mental concoctions, or which are born out of own judgments. Okay. So this, whatever the things are there, जो चीजें हैं भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, शास्त्र के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो चीजें हमको साइंटिफिकली समझना बहुत जरूरी है. Spirituality is a science, so we need to understand it very scientifically. It is not based on mental concoction or mental speculation. अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि हनुमान जी भगवान है शायद, या मुझे लगता है राम जी भगवान है. नहीं, शिव जी भगवान है. मुझे लगता है शिव जी भगवान है, या मुझे लगता है सभी भगवान है. So like that, we get this kind of different inputs. If you have heard this kind of inputs, if you have heard ये सब inputs अगर आपने सुना है इंडिया में कि नहीं भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसा है, सभी भगवान है, या फिर भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते हैं, नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता है तुमको, तुम क्यों दिमाग लगाते हो, अपना काम करो, ऐसे अगर आपने सुने हैं चीजें तो प्लीज टाइप लिसन इन द चैट बॉक्स. अगर आपने सुने ऐसे चीजें इन योर लाइफ, अगर आपने सुने ऐसी चीजें तो प्लीज टाइप आई लिसन इन द चैट बॉक्स, अगर आपने सुना ऐसी चीजें. My question is that कि लोग भगवान के बारे में जब क्वेश्चन होता है, ठीक है सुजय, इफ आई आस्क यू हाउ टू डू अ सर्जरी, इफ आई आस्क यू कि आपको सर्जरी कैसे करना है, या फिर लाइक बायोलॉजी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीजें मतलब होती है उसमें, कैसे आगे ये प्रोसेसिंग होता है बायोकेमिकल्स का, या ह्यूमन बॉडी के क्या क्या चीजें होती है, कैसे ऑपरेशन करना चाहिए. अगर आपको आपने पूछा आपको आगे कैसे सर्जरी करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा फील्ड नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, राइट? सो बेटर यू आस्क अ क्वालिफाइड पर्सन इन दैट एरिया, करेक्ट? बट इफ वी आस्क पीपल अबाउट गॉड और अबाउट स्पिरिचुअलिटी और अबाउट रिलीजन और अबाउट धर्मा, then people are ready to give hundreds and thousands of opinions. नहीं ऐसे कर लो, यही धर्म है, ये है. वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है. कितना लोगों ने सुना है ये काम ही पूजा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है, ये बताया किसी ने आपको? काम ही पूजा है, ठीक है? अगर पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट अगर एक जगह पे है, अगर आपको किसी ने बोला कि पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पे या जो भी पोजीशन पे बोरॉन एलिमेंट सिचुएटेड है, तो वो वहां पे होगा, आप चेक कर सकते हो उसको, राइट? लेकिन काम ही पूजा है, ये किसी ने बोला है आपको, किसने बोला है, कहाँ लिखा है ऐसा, कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? जस्ट एन एग्जांपल. ये चर्चा का विषय नहीं है कि कैसे काम है पूजा है या नहीं है. काम ही पूजा भगवत गीता के. अच्छा, आपने अगर आप बोले भगवत गीता में है तो प्लीज बताइए कौन सा श्लोका में है, श्लोका नंबर, चैप्टर नंबर एंड श्लोका नंबर. आप अगर टेक्स्ट में बताएंगे मुझे तो मैं उसको रेफर करके जरूर सीखना चाहूंगा कि जहाँ पे लिखा है भगवान ने बोला है कि काम ही पूजा है, ऐसा. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? तो सिस्टमैटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवत गीता से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? वी शुड नॉट बेस्ड ऑन मंडेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सीखना है, समझना है. दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग एवरीबॉडी हियर, जो लोग नए आ रहे हैं, लाइक कुछ वीक से आ रहे हैं, प्लीज गो थ्रू द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स. नहीं तो आपको कई सारे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाउंसर जा सकते हैं. अगर आपने 6 सेशंस को नहीं देखा है ठीक से,
तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। बट 6 सेशंस अगर आप ठीक से देखेंगे, अच्छे से थॉरली आप देखेंगे ना, तो योर बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी वेरी क्लियर। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक डेफिनेशन इज रियलिटी ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी ऑफ द स्पिरिट, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये समझना है हमको। एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा। और परमात्मा और आत्मा सेम नहीं हो सकता है। कैसे सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। फिर से बोलता हूं मैं, परमात्मा और आत्मा सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ओशन, ठीक है, समुद्र है, ठीक है ना, बहुत लोग बॉम्बे में है यहाँ पे या जो भी पार्ट में, सबने कभी ना कभी समुद्र जरूर देखा हो। तो समुद्र में एक बूंद लो या पूरा समुद्र लो, उसका क्वालिटी क्या है? वो खारा होता है पानी, इट इज सॉल्टी इन नेचर, राइट? तो सिमिलरली बट क्वांटिटी वाइज एक बूंद का क्वांटिटी और पूरे सागर का क्वांटिटी अलग है। तो वैसे ही जीवात्मा या वी आर लिविंग एंटिटीज, वी आर लाइक द ड्रॉप of the ocean and we have the same quality as the entire ocean, but we are different in size, we are minute in size, we are infinitesimal and he is infinite. Okay, so we are same in quality with the Lord, but we are different in quantity with the Lord. Okay, is everyone clear with this concept of the difference between Jivatma and Paramatma? This is concept has to be very clear. जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है। जीवात्मा जीवात्मा है, वो हमेशा जीवात्मा रहेगा, वो परमात्मा नहीं बन सकता है। ठीक है, जीवात्मा इज सोल एंड परमात्मा इज कृष्णा और द सुपर सोल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत क्लियरली समझना चाहिए। कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे, नहीं हम लोग कुछ साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, ऐसा कुछ करके हम लोग भगवान बन सकते हैं। दैट इज बोगस फिलॉसफी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम कभी भी कोई भी स्टेट में, इवन इफ वी आर डूइंग साधना और वी आर डूइंग सम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, वी कैन नॉट बिकम गॉड। नोबडी कैन बिकम गॉड। गॉड इज ऑलवेज गॉड। गॉड का डेफिनेशन है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ही इज ऑलवेज, ऐसा नहीं कि वो कुछ करके हम भगवान बन गए। Always, he was always God. He is the supreme creator. अगर आपको क्वेश्चन पूछे गॉड का क्रिएटर कौन है, तो गॉड का क्रिएटर कोई नहीं है। गॉड इज हिमसेल्फ एवर एग्जिस्टिंग। वी हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, बट गॉड इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। या सो दिस इज सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको बोला कि एक बच्चा है, ठीक है, इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू डेप्थ इनटू दिस राइट नाउ। ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, नाउ माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट 3 years बैक एंड वी हैड अ बेबी। सो द बेबी केम फ्रॉम द मदर एंड द फादर, राइट? सो हम कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं। ठीक है, और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए हैं? बिकॉज वी वर ऑल लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद द लॉर्ड। जैसे मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, बोलता हूँ पिताजी मैं अभी अपना कमा रहा हूँ, अपने आप रहूंगा, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। आप रहते हो तो मेरे जीवन में दखल अंदाजी होता है, आप ये बोलते हो वो बोलते हो, आई विल टेक अ सेपरेट फ्लैट, सेपरेट हाउस एंड स्टे सेपरेट। तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब हम देखते हैं कि ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन कृष्णा एंड द लिविंग एंटिटी इज हैप्पी इन डूइंग दैट, बट फॉर सम रीजन दिस एनवी डेवलप्स। तो एनवी हमने यहाँ पे पढ़ा, एनवी डेवलप्स कि भगवान इतना एंजॉय कर रहे हैं और हम भगवान के एंजॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट इफ आई आल्सो वांट टू बिकम गॉड? अगर मैं भी भगवान बन सकूं, मैं भी इतना एंजॉय कर सकूं। So when we have that desire, we are sent from the spiritual world, from the kingdom of God to this dukhalayam ashashvatam, to this material world. और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, एवरीबडी फेसेस these problems. There are other problems also. Miseries caused by body and mind, miseries caused by natural disturbances,
You can call COVID also a natural disturbance, or in that way nature se wo aaya hai, whatever, it came from China or from the bat, it ultimately came from nature. It's a virus. And then misery is caused by body and mind, misery is caused by other living entities, and misery is caused by body and mind, misery is caused by other living entities, and misery is caused by natural disturbance. Other living entities koi bhi ho sakta hai. Misery is caused by other living entities. Maybe for husband, the living entity causing misery could be wife. For wife, it could be the husband. For someone, it could be a mosquito, and for someone, it could be a terrorist. ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. तो ये जो है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे एवर एग्जिस्टिंग है, ठीक है. और ये प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. हम लोग यहाँ पे आते हैं तो वी गेट सम एंजॉयमेंट. डेफिनेटली देयर इज सम एंजॉयमेंट. एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग समथिंग और द अदर इन दिस लाइफ, राइट. बट ये कैसा है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है. मानिए इस बॉटल के अंदर हनी है, ठीक है. तो मैं जो एंजॉयमेंट कर रहा हूँ ना, आई एम लिकिंग दिस बॉटल फ्रॉम द आउटसाइड. हनी इसके अंदर है. The actual enjoyment for a living entity is in the spiritual world with Krishna. But when serving Krishna and enjoying with Krishna, serving, matlab, when we think of serving, don't think of the serving which is happening in this world. All of you may be working in companies, right? So the company is asking you to serve and in return giving you a paycheck. So they are making you maybe work like donkey. That may be a reality of this world, right? But the spiritual world में the जीवात्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एल्मीरा है, ठीक है. एल्मीरा में कुछ नट्स एंड बोल्ट्स है. तो नट्स एंड बोल्ट जो है एल्मीरा में जब लगते हैं ना, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है. अगर उसको नट एंड बोल्ट को ऐसे बाहर रखा जाए तो उसका कोई यूज नहीं है. वैसे वो वहां जाके ही वो कंप्लीट होता है. सिमिलरली द लिविंग एंटिटी ऑल्सो एंजॉयज इन कनेक्शन विद कृष्णा, बिकॉज उसका पार्ट एंड पार्सल है वो. तो जब उससे कनेक्ट होता है, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होता है, तो वो एंजॉय करता है. देन परमात्मा एंजॉयज, द आत्मा ऑल्सो एंजॉयज इन कनेक्शन विद द परमात्मा. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज करते हैं जो हमको परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. हमारा रिलेशनशिप जो लॉस्ट हो गया था, वो एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करता है वापस. Because when we establish that relationship, we can go back to the spiritual world where there is no dukh, where there is no temporariness. This nature of this world is temporary and problematic. There is unhappiness and temporary. अगर इस बात को कोई चैलेंज करना चाहता है कि ये वर्ल्ड टेम्पररी नहीं है, अनहैप्पी नहीं है, then you can type in the chat box. I'm ready to debate with you. If you say that this world is, there is something permanent in this world. कुछ परमानेंट है क्या यहाँ. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर परमानेंट. एक ही चीज है, इसका नेचर, इसका जो नेचर है इस वर्ल्ड का, वो दुख देने वाला है, ठीक है. आप ओवन में कभी भी आइस नहीं जमा सकते हो. ओवन का काम है गरम करना. ओवन में केक गरम हो सकता है. सिमिलरली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो डिजाइन्ड इन सच अ वे टू कॉज प्रॉब्लम्स इन सच, सो दैट इसका दो पर्पस है इस दुनिया का बनाने का भगवान. तो फर्स्ट पर्पस इज टू हेल्प फैसिलिटेट आवर डिजायर टू एंजॉय. हम लोग एंजॉय करना चाहते थे सेपरेटली भगवान से, हम इसलिए यहाँ पे आए, एंड वी आर गिवन अ फैसिलिटी टू एंजॉय. एंड सेकेंड थिंग इज वी आर गिवन ऑल द सफरिंग, सो दैट अल्टीमेटली आफ्टर दिस एंजॉयमेंट वी रियलाइज दैट, या करेक्ट सुजय, सो वी रियलाइज दैट we are not meant to be in this world, and we are parts and parcels of Krishna, and we can make attempt to go back to Godhead, to go back to Krishna. और ये possible सिर्फ human life में ही है. When we come to this world, we start maybe as a human, and then if you don't use the human life properly, जैसे आपको कंपनी ने गाड़ी दी, मुझे ये लैपटॉप दिया है. लैपटॉप में we are discussing Krishna Katha right now. This laptop is given to me by IIT to perform the job for IIT. तो मैं IIT का काम करता हूँ, and I'm using it, for some some satsang and some for my personal work also. But अगर मैं IIT का काम छोड़ के पूरा टाइम पर्सनल वर्क ही करता रहूंगा, then IIT will question me, right? So similarly, if the body, the human form of life is given to me so that I can re-establish my
connection with the Supreme Lord. Because in the human body, I have that discriminatory power. I discussed before that 4 things are common: eating, mating, sleeping and defending. आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अंच. ठीक है, अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप इसके बारे में कन्विंस है क्या? अगर आप इसके बारे में कन्विंस है तो आप बोल सकते हैं हमें 100% कन्विंस्ड हूं. ठीक है, लेकिन हमको बार बार सुनना है ये चीज, जो लोग सुन चुके हैं, ताकि हमको ये चीजें रिमाइंड हो सके कि हम ये 4 चीजों में अपना जीवन व्यर्थ ना करें. केवल 4 चीजों. वी नीड ईटिंग, वी नीड डिफेंडिंग, वी नीड मीटिंग फॉर रिप्रोडक्शन, वी नीड ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. ये 4 चीजें हमको चाहिए लाइफ में. बट दीज थिंग्स आर डन बाय एनिमल्स ऑल्सो. महाभारत का एक वर्ष है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समेद भिन्न पशुभिर नरानाम धर्मो विशेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान. Ahar, nidra, bhay, maithun, eating, mating, sleeping and defending, these are common activities between animals and humans. The only differentiating factor is that dharma vishesha adhiko vishesho dharmena hina pashubhi saman. धर्म जो है वो डिफरेंशिएट करता है पशु और एनिमल्स में. अगर धर्म नहीं है तो वी आर जस्ट सोफिस्टिकेटेड 2-legged एनिमल्स. तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ के बाद हमको ये ह्यूमन लाइफ मिला है, wherein we are supposed to connect back to Krishna and revive our original constitutional position. Yes, we do our duties. We are in a family situation. We are a student. We are a professor. We are a project manager. We are a flight attendant, or whatever work we are doing. We do that. No problem in that. But we also take our time to revive our lost relationship with the Supreme Lord by practicing the message of Bhagavad Gita. I'll come to your point, Sujay. ये point मैंने establish करना चाहता था पहले. So if you're clear till now what I explained, if you understood the point which I said, then you can mention clear. ठीक है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये points already journey of self discovery में explained है बहुत अच्छे से, तो आप वहां पे जाके इसको रेफर कर सकते हैं. Please go through the lectures very serially. 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो 3 बार आप देखो तो आपको क्लियर होगा. ठीक है, and it is very scientifically. मैं आपको illogically बात करके नहीं बोल रहा, logically you can understand it also. And spiritual knowledge में देखिए 100%, you know, it is not, logic doesn't work. Maybe we are engineers, we are doctors. I'm also an engineer. Unfortunately or unfortunately, I don't know. Definitely, Bhagwan ne, grateful that God gave us the intelligence to study engineering, and we could do that. And our parents helped us, supported us with that. So, while we understand this concept, of why we came to this world and why we came to this world and what is the purpose. Purpose ये है कि हमको वापस जाना है भगवान के पास. That is the purpose of this life. Yes, correct. So अभी हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान के 3 एस्पेक्ट होते हैं. ठीक है, भगवान के 3 एस्पेक्ट होते हैं. भागवतम में बताया है, भागवतम 2nd कैंटो में है, आई थिंक 1.2.2 है, फर्स्ट कैंटो में है. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. इसको ध्यान से समझिए. इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये वर्स है. इसका मतलब है कि, अच्छा एक बात बताइए कि जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, आज मैं सुबह उठा ना, तो मेरी बेटी ने बोला, she's 2 years, पापा सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए. तो क्या रूम में वो खिड़की के पास खड़ी थी, खिड़की के पास खड़ी होकर वो बोल रही थी कि पापा सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए पापा. ठीक है, जब वो उठी तो क्या सूर्य देवता हमारे रूम में आ गए थे? कौन रूम में आया था? रूम में क्या आया था? खिड़की के माध्यम से रूम में क्या आता है? क्या सूर्य देवता वाकई रूम में आए थे या कौन आया था रूम में? सन रेज, करेक्ट. सनशाइन और सन रेज के मिलकर सनलाइट, राइट. सो सन और सनलाइट सेम है क्या? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, सूरज आ गया, सूरज आ गया, सूरज आ गया. तो भगवान जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको नहीं समझे तो मुझे पूछना, लेकिन ये एक फंडामेंटल पॉइंट है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इस पॉइंट पे. तो सुजय ने बोला ना कि हम वापस वहां पे जा सकते. तो सन और सनलाइट सेम भी है. ठीक है, जब हम सनलाइट को रेफर करते हैं तो सेम भी है, बट डिफरेंट भी है दोनों. ठीक है,
सन और सनलाइट सेम भी है बट डिफरेंट भी है, दोनों सन है बट डिफरेंट भी है, ठीक है, इसको समझना है, यू नो, दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, ठीक है। जैसे दही जो है वो दूध से आता है, इट्स अ मिल्क, दूध है बट दूध नहीं भी है वो, ठीक है, बिकॉज इट हैज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन मिल्क, ठीक है। तो सिमिलरली सनशाइन व्हिच इज एमिनेटिंग फ्रॉम द सन इज अ पार्ट ऑफ द सन बट ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो भगवान के जो एस्पेक्ट होते हैं ना, वो एक होता है इम्पर्सनल एस्पेक्ट, कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह भगवान है, ठीक है। ही इज प्रेजेंट एज द लाइट एवरीवेयर। तो भगवान क्या है? भगवान तो लाइट है, ज्योति है। तो ज्योति क्या है इसको समझते हैं हम, ठीक है। और सब कुछ आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको भगवत गीता से वर्स का रेफरेंस देके दिखाऊंगा जहां पे लिखा है ऐसा चीजें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन शो यू द वर्स इन द भगवत गीता। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग ऑन माय ओन मेंटल कंकॉक्शन। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है, इसको आचार्य ने कमेंट्री करके एक्सप्लेन किया, वो चीजें नॉट एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि भगवत गीता का फर्स्ट वर्स आपने सुना होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? अर्जुन सॉरी ये क्वेश्चन पूछ रहा है धृतराष्ट्र, फर्स्ट वर्स जो है धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय को। संजय को आपको पता है दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे अभी जैसे हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है ना, आप मैं इधर गुवाहाटी में बैठा हूँ, आप कहीं दूसरे जगह पे है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो वैसे संजय को तो संजय को उतना दिव्य पावर दिया था कि वो हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकता था विदाउट यूजिंग दिस गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग को लगता है कि ना अभी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हो गए हैं। महाभारत के टाइम में जो टेक्नोलॉजी था वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी हमारे पास आपने सुना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ फायर एलिमेंट, बट अर्जुन के पास वरुणास्त्र भी था। वरुणास्त्र मतलब पानी का अस्त्र भी था। कोई कंट्री के पास अगर किसी को पता है कि पानी का अस्त्र भी है तो मुझे बताइए। अगर आप मे बी दे आर डिस्कवरिंग, दे विल डिस्कवर इट, इट्स पॉसिबल दैट दे विल डिस्कवर इट, बट ये सोचना कि वो लोग पिछड़े थे, they didn't have so much advancement at that point of time and we are more advanced even technologically is also not correct, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमको समझना चाहिए। पुष्पक विमान था, रामचंद्र जी कैसे आए थे? पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे सीता जी को रावण से छुड़ाने के बाद। सो ऐसा नहीं था कि एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया उसके बाद पहले कभी था ही नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। सो दिस थिंग्स आर देयर, राइट। सो आई थिंक आई एम डिवेटिंग फ्रॉम द टॉपिक, सॉरी फॉर दैट। सो ये समझना हमको जरूरी है कि भगवान के तीन एस्पेक्ट है। ब्रह्मन विच इज द लाइट, ठीक है, जो सर्वव्यापी लाइट होता है भगवान का। एक मतलब परमात्मा एस्पेक्ट, मतलब हमारे हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं, ठीक है। परमात्मा बोलते हैं ना हृदय में रहता है, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट गॉड इज अ पर्सन। अगर मैं आपको बोलूं सुजय या नीलेश या सैली जो भी है यहाँ पे मीटिंग रूम में, यू आर नॉट अ पर्सन, यू आर आपका मैं वॉइस सुन रहा हूँ, आपको मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, आपको वीडियो बंद है, तो बोलोगे नहीं यू आर नॉट अ पर्सन, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं बट आई डोंट कंसिडर यू एज अ पर्सन। सो अगर आपको ये सुन के ही ना थोड़ा सा यू विल फील ह्यूमिलिएटिंग। आई विल एक्सप्लेन नीलेश, ठीक है। तीन एस्पेक्ट है भगवान का, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड लोकल। अगेन आई से पर्सनल, इम्पर्सनल एंड लोकल। पर्सनल मतलब पर्सनालिटी, ठीक है। अगर मेरा पर्सनालिटी है तो ही आप मुझे आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, राइट, टी शर्ट, सो आई हैव अ पर्सनालिटी, देयरफॉर आई कैन वेयर दिस शर्ट। इफ आई एम अ लाइट, अगर मैं एक लाइट हूं तो लाइट टी शर्ट नहीं पहन सकता है। लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लेस, करेक्ट। सो पर्सनल एस्पेक्ट है भगवान को हम पर्सनल एस्पेक्ट के रूप में, इज अ पर्सनालिटी, इज अ पर्सन, and as a person he is present in the spiritual world. He can be present before us also, but we don't have the eyes to see him,
राइट। हम सूर्य को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इफ समवन सेज इट इज वेरी फुलिश कि भगवान दिख नहीं रहे तो भगवान नहीं है, ठीक है। और आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, who is the Guru Maharaj of Srila Prabhupada, he used to say that don't try to see Krishna, don't try to see God, but change your character, change your lifestyle, change your attitude in such a way that God wants to see you. हम भगवान को नहीं देख सकते जब तक भगवान हमको अपने को दिखाएंगे नहीं, ठीक है। मैंने कभी अमेरिका देखा नहीं है, पर सुना है उसके बारे में, न्यूज में देखा है, सुना है कुछ लोगों से उसके बारे में। So I believe that America exists. मैं कभी गया नहीं हूँ वहां पे। तो it is not necessary that seeing is believing. That is one concept. Okay. So now coming to these three aspects, again I'm saying, I'm typing into the chat box. Personal, impersonal and local. ये तीन एस्पेक्ट्स है, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड लोकल। तो भगवान का एक बॉडी है, ठीक है, हमको ये समझना है। एंड दिस बॉडी इज नॉट लाइक आवर बॉडी। आपने ये किसने ये स्टेटमेंट सुना है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। बाइबल में एक स्टोरी बना है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। किसने बताया, किसने सुना है इस पॉइंट को? अरे मतलब आपने सुना है, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने सुना है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मतलब मनुष्य जो है भगवान की इमेज में बनाया गया है। भगवान का जो इमेज है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हमारा एक रूप है, राइट, हमारा एक रूप है, एक आकार है। तो इसीलिए भगवान का लाइक हमारा एक रूप है, आकार है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का भी एक रूप है, आकार है, हमारे दादाजी का भी है, उसके ऊपर भी है। एवरीबॉडी हैज अ रूप एंड आकार, जहां से हम लोग आए हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल इफ वी से दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान जो है उनका आकार नहीं है, वो निराकार है। तो भगवान जो है आकार भी, साकार भी है, निराकार भी है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड द निराकार इज बेसिकली द लाइट दैट इज एमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान का जो बॉडी है, इट इज नॉट लाइक दिस बॉडी। दिस बॉडी इज मेड ऑफ ऑल एबोमिनेबल थिंग्स, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लेश, बोन्स, ब्लड, and I can't mention also all these things it is made of, right? और इसके ऊपर क्रिएटर ने एक सुंदर पैकेजिंग कर दिया, स्किन से एक सुंदर पैकेजिंग कर दिया। स्किन को हटाने के बाद क्या दिखेगा आपको पता है अंदर, राइट? वेरी अबॉमिनेबल, राइट? तो जैसे आजकल पैकेज प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सुंदर से अच्छे से पैकेज करके आते हैं, अंदर माल नकली भी हो सकता है या घटिया भी हो सकता है, but people are ready to buy. Why? Because the package is so attractive. पैकिंग इतना सुंदर है इसका पैकिंग, it may be a soap or it may be a perfume or whatever. So similarly we need to kind of understand that ये जो भगवान जो है, भगवान का जो बॉडी है, it is made of सच्चिदानंद, it is transcendental, उसमें खून ये सब चीजें नहीं है, it is a transcendental body, it's a दिव्य बॉडी, ठीक है। और वो बॉडी कभी भी मरता नहीं है, it never changes. When he comes to this world, he comes in his original form, ठीक है। So that is why it is said कि भगवान अवतार लेते हैं, he comes in his original form. अगर कृष्ण लीला अगर आप पढ़ेंगे ठीक से, तो भगवान चतुर्भुज रूप में, देवकी और वसुदेव जब मथुरा के जेल में थे, वहां पे चतुर्भुज रूप में आए। फिर उन्होंने जब प्रार्थना किया तो he took the form of a baby, he came in that particular form. And Lord is never born as we are born, or babies are born in this material world through the interaction of male and female. No, it doesn't happen by that discharge process that happens between the male and the female union. That is not how Lord is coming in this world. He comes by his own will, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे ठीक से, भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है कि कृष्णा फर्स्ट came in the heart of Vasudev, and from the heart of Vasudev he was transferred to the heart of Devaki, and from there he came to his womb, and on his own will, he was not suffering in the womb like the babies are suffering. अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, इसमें इट्स अ साइंस, 3rd कैंटो में पूरा बताया कि बेबी 9 महीने कैसे सफर करता है वूम में, बट लॉर्ड डजंट सफर इन दैट वे। मैं आपको स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस भी दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। तो भगवान के 3 एस्पेक्ट्स है, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड लोकल। तो पर्सनल इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान स्वयं। इम्पर्सनल इज द
बॉडीली इफल्जेंस, तो लाइट उनके बॉडी से निकल रहा है, सब जगह व्याप्त हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसको इम्पर्सनल एस्पेक्ट बोलते हैं। लोकल इज अ परमात्मा एस्पेक्ट। लोकल मतलब भगवान का एक मर्सी रूप है। मर्सी मतलब क्या है कि जब लिविंग एंटिटी, जब हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि भगवान हमको आपसे अलग, हम एक विचार करते हैं कि नहीं हमको भगवान से अलग जाना है मटेरियल वर्ल्ड में, भगवान बोलते हैं ठीक है तुम जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में आते हैं, और वो सुअर के हृदय में, बिल्ली के हृदय में, चींटी के हृदय में, पेड़ के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में भगवान विस्तार करके रहते हैं। ठीक है, हम अपना हाथ क्यों हिला पा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का वास। आत्मा डिजायर करता, हम डिजायर करते हैं कि ना मुझे ये पानी पीना है, तो परमात्मा सैंक्शन करता है तब मैं ये ले पाता हूँ। ठीक है, तो श्वेतेश्वर उपनिषद में डिस्क्राइब किया गया है कि परमात्मा और आत्मा दोनों दो बर्ड्स की तरह है जो हृदय रूपी एरिया में विराजमान है। ठीक है, इफ यू रीड, इसमें एक्सप्लेन्ड है सोल कहां पे रहता है। सोल इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का रीजन, हार्ट के अंदर नहीं है वो। हार्ट ट्रांसप्लांट करने से सोल चेंज नहीं होगा। ठीक है, डोंट गेट इनटू टेक्निकलिटीज। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो सोल चेंज हो जाता है, नो। सोल इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट, नॉट इन द हार्ट, नॉट इन द हार्ट। हार्ट आप चेंज कर सकते हैं, पर वो रीजन ऑफ द हार्ट में सोल रहता है, इन दिस रीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो द सोल स्टेज हियर एंड द परमात्मा also stays here with the soul. The परमात्मा is trying to guide this, परमात्मा और आत्मा दोनों रहते हैं। तो आप ये अगर पढ़ेंगे भगवत गीता ठीक से, तो भगवत गीता में ऐसा एक्सप्लेन किया है श्वेतेश्वर उपनिषद में कि दो बर्ड्स हैं। एक बर्ड जो है आत्मा, वो क्या कर रहा है, भोग में लगा हुआ है। He is constantly eating the fruits of the tree. वो दुनिया में आ गया है, सोच रहा है कि हाँ मैं कैसे एंजॉय करूँ, यू नो, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा घूमना चाहिए, मुझे अच्छा पहनना चाहिए, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, यू नो, विच विल मेक मी हैप्पी। He's trying to be happy. And unfortunately, my Guru Maharaj, Radhanath Swami Maharaj, was saying that today is a culture when people love things and use people. Unfortunately, so we are meant to use things. This thing is not meant to be loved; it is meant to be used. But unfortunately, many people have started loving it, and they're using their the living entities actually. So we are meant to use things and love people, but unfortunately, we are loving things and using people. I mean, if anybody wants to deny that, I'm not saying you are doing it, but that is what the general populace is there. Like I, interact with so many students as a career guide coach also. So they have a lot of, this addiction problems to gadgets and devices and disconnection from their peers and parents and so many other things. Because, the millennial generation especially is getting into, love for devices and gadgets. They can't live, a day without a laptop or a mobile. In fact, even for elders, it is advised, fasting karte hain hum log food se, but can you fast from WhatsApp for one day? आप अगर WhatsApp से या Facebook से या Twitter या whatever platforms are there which you want to use, which are, if you can fast for one day, that itself is a great achievement. So, if that, you agree with me, then please type agree in the chat box. So, Nilesh, is your question answered? कि personal, impersonal और local, ये तीन चीज रहते हैं भगवान। आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा, ठीक है? Don't expect all the things to be clear to you at one way, but you will gradually understand this point. कि personal, impersonal और local, ये तीन एस्पेक्ट भगवान के होते हैं, ठीक है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अभी आप देखिए, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सागर और उसका बूंद, ठीक है? तो आपको लगेगा कि सागर का बूंद अगर सागर से बाहर आया है तो बूंद को सागर के अंदर डाल दो। तो जब बूंद को सागर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उस बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यू कैनॉट डिफरेंशिएट, राइट? आई वाज टेलिंग दिस थिंग that my wife was pregnant 3 years back and we had a beautiful daughter by the God's grace. Now, if my daughter says after some time that mother, I want to merge back into you, मैं तुमसे बाहर आया था, अब मैं तुम्हारे अंदर वापस जाना चाहता हूँ, mother will not be happy. Why? Because when there are two, there is reciprocation and exchange, there is loving dealings. ठीक है? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, वैकुंठा प्लैनेट्स में, तो वहां पे अलग अलग रस है भगवान से इंटरेक्ट करने के।
There are 5 primary rasas. You can interact with the Lord as a servant, in the mood of a servant, ठीक है, in the mood of shantaras, in the mood of like कोई वहां पे भगवान को as a tree serve कर रहा है. Tree doesn't mean tree of this material world. The tree is also चेतन. वहां पे हर चीज चेतन होता है. अभी आप बहुत सारे कार्टून फिल्म देखती है मेरी बेटी, मैंने देखा तो वो कार्टून में ट्री भी बात करता है, कुछ एनिमल भी बात करता है, कोई थिंग्स भी बात करते हैं, अलग अलग थिंग्स. तो ये सब चीजें कहाँ से आया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज लाइक चेतन रहता है, उनके पास चेतना रहती है उनके पास, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड इन देयर ओन डिफरेंट वेज. समवन इज ट्राइंग टू फैन द लॉर्ड, समवन इज एज अ ट्री, भगवान को छाया दे रहे, भगवान उसके छाया में बैठे हैं. और भगवान में पावर है कि ऐसा नहीं कि भगवान एक ही जगह पे है. इट इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड टू सैटिस्फाई एवरीवन एट वन गो. इस लोग को कुछ लोग, कोई मेरे को बोल रहा था एक बार कि क्या आपके भगवान ने 16,108 लोगों से शादी कर लिया, रानियों से शादी कर लिया? एक प्रभु जी बोल रहे थे कि कर लिया शादी, ठीक है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुमसे खर्चा थोड़ी ले रहे हैं. 16,108 शादी किया है, तुमसे तो खर्चा नहीं मांग रहे हैं वो. तो भगवान के लिए वो पॉसिबल है. जब 16,108 से भगवान ने शादी किया था तो हर महल में भगवान प्रेजेंट थे, द्वारका में. एवरी महल में. ऐसा नहीं था कि एक रानी के पास एक दिन, दूसरे के पास एक दिन. He had the personal capacity to satisfy 16,108 wives. Okay? We are struggling to maintain or maintain one wife. That is the reality of this world, right? यहाँ पे बहुत सारे married men हैं, and we know the challenges that is there in married life. Obviously, we are grateful to God that we have all been blessed with a beautiful family and a beautiful life partner, definitely. But there are challenges which we face. वो हमारी लिमिटेशन है, लेकिन भगवान अनलिमिटेड है. तो भगवान इतने सारे रानियों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हर लिविंग एंटिटी को सेटिस्फाई करना भगवान के लिए पॉसिबल है. दैट इज पॉसिबल. वो भगवान का शक्ति, दैट इज व्हाई इज भगवान. हम वो नहीं कर सकते एज जीवात्मा. ये समझना बहुत जरूरी है. सो अगर कोई पूछे आपको कि भगवान के पास इतने सारे रानियां शादी किया, इतने सारे गोपी के साथ रास किया, सिंपल लॉजिकल है. भगवान ने सबको बनाया है. इट इज एक्चुअली सेड दैट कृष्णा और द लॉ गॉड इज हस्बैंड ऑफ एवरीवन. ही इज द पति. ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ एवरीवन. तो जैसे मेरे मिठाई का दुकान है, आप मेरे मिठाई के दुकान पे आए, आपने मिठाई खरीदा, आपने देखा मैंने भी थोड़ा मिठाई खा लिया, आप मुझे क्वेश्चन करेंगे क्या कि आपने मिठाई क्यों खाया? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द मिठाई शॉप, राइट? सो मैंने मिठाई खा लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान अगर अपने गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, they are everything is his part and parcel. Okay, I will not go deep into this topic. If you have doubts, you can personally ask me, or we'll discuss about this in detail in later part. But we need to understand the position of God. और भगवान ने पहले गोवर्धन पर्वत उठाया, उसके बाद रासलीला की. इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया. मैं इस उंगली पे ये बॉटल को भी नहीं उठा सकता. तो भगवान ने 22 किलोमीटर्स जो रेडियस है, 22 किलोमीटर का रेडियस, आज भी आप जा सकते हैं ब्रजमंडल में, वो गोवर्धन पर्वत आज भी. तो उसको उन्होंने इस लिटिल फिंगर पे उठाया था उस टाइम पे. तो आफ्टर दैट ही डिड रासलीला. तो ही हैड दैट पावर. ठीक है, कई लोग शिव जी को इमिटेट करते हैं, शिव जी को सोचते हैं ना, शिव जी मतलब ये क्या बोलते हैं, भांग खाएंगे. शिव जी मतलब ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भांग खाएंगे. शिव जी कभी भांग नहीं खाते. शिव जी क्या खाते हैं पता है? शिव जी का नाम है नीलकंठ. शिव जी क्या पीते? जहर पीते. आप में जहर पीने का तो हिम्मत नहीं है, तो आप भांग खा रहे हैं. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इमिटेट द लॉर्ड. ऐसा एडवाइजेबल नहीं है कि आप भगवान के एक्टिविटीज को इमिटेट करें. ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. अगर हम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो हम रासलीला करने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं. अगर हम जहर पी सकते हैं नीलकंठ की तरह, तो हम उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. If it makes sense, please type MS in the chat box. MS makes sense. अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ, if it makes sense, type makes sense in the chat box. तो ये प्रिंसिपल हमको समझना बहुत जरूरी है. When we are practicing spirituality, people may ask us all these questions. इसलिए मैंने ये सब चीजों का आंसर देना था. I know past time डिस्कस करना था भगवान राम का, हनुमान का, वो नेक्स्ट वीक भी हम कर सकते हैं. But since this question was asked, मैं ये बताना चाहता था.
तो जब हम भगवान के पास रहते हैं ना, तो वी आर ऑल हैविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. Someone is serving. There are 5 basically rasas. One is शांतरस. शांतरस में वैसे मैंने आपको बताया पेड़ भी हो सकता है, कोई शंख भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकता है. दास्य रस में कोई हनुमान जी भी हो सकता है, कोई दूसरा सेवा कर सकता है भगवान का दास्य मूड में. साख्य मूड में एज फ्रेंडशिप लाइक अर्जुन. देन वात्सल्य मूड में लाइक यशोदा और द एल्डर गोपीज, और इट मे बी कौशल्या माई, इट मे बी अदिति फॉर वामन देव. ऐसे बहुत सारे जो माँ का प्रेम दे रहे, बाप का प्रेम दे रहे, पिता का प्रेम दे रहे भगवान को वात्सल्य मूड में. जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल को वर्शिप करते हैं घर, ठीक है, गोपाल जी को लेके आते, तो गोपाल जी को जनरली वर्शिप करते हैं वात्सल्य भाव में, अरे मेरा छोटा गोपाल है. तो जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं लड्डू गोपाल को कि हम उनको गर्म दूध का ग्लास नहीं देते कभी. हमारे श्री मायापुर मंदिर में एक बार एक मतलब एक कुछ साल पहले एक पुजारी थे, वो भगवान को भोग लगाने जा रहे थे. भोग लगाने के लिए उन्होंने दूध का ग्लास में भोग लगाया भगवान को. 2 बड़े बड़े ग्लास देते भगवान को, राधा कृष्ण को दूध का भोग लगाया. तो भोग लगा के जैसे वो बाहर आते थे तो वो ग्लास गिर जाता था. ग्लास मतलब गिर जाता था. ऐसे 2-3 बार हुआ. तो फिर उन्होंने हेड पुजारी को पूछा कि अरे दूध का भोग लगा रहे, 2 बार लगा दिया, तो ये ग्लास गिर रहा है बार बार, क्या हो रहा है. तो उन्होंने बोला कि आपने गर्म दूध का भोग लगाया, एकदम गर्म है. तो बोला हाँ दूध काफी गर्म है, आज थोड़ा ठंडा मौसम था तो मैं ज्यादा गर्म कर दिया. तो बोला अब दूध ठंडा करके भोग लगाओ, ठीक हो जाएगा. तो उन्होंने दूध ठंडा करके भोग लगाया भगवान को, तो दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड. सो ये सब भी साइंस है, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स कि डीटी जो है, मूर्ति जो है, वो स्वयं भगवान होता है. कैसे होता है, लेट्स इट रिमेन अ मिस्ट्री, विल डिस्कस इन द फ्यूचर समटाइम. तो ये पर्सनालिटी मतलब भगवान को हम एक पर्सन की तरह डील करते हैं. जब हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, वी डोंट थिंक दैट ही इज अ स्टोन. इफ यू थिंक ही इज स्टोन देन ही रेसिप्रोकेट विद अस एज स्टोन. लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये भगवान है, ये हमारे गोपाल जी है, उनको हम उसे पूजा करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, उनको ड्रेस करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, जैसे हम एज अ पर्सन इफ यू डील विद हिम, ही विल रेसिप्रोकेट विद अस एज अ पर्सन. It is possible for anyone, even a small child. Like I taught my daughter, छोटी थी, कि तब तुमको चोट लग जाता है, कभी बच्चे खेलते रहते गिर जाते हैं, तुम भगवान को जाके बोल दिया करो, गोपाल जी है घर में, गोपाल जी को बोल दिया. तो जब भी वो गिरती है अभी बोलती है गोपाल जी को बोलना है, गोपाल जी को बोलना है, गोपाल जी को जाके बोल देती है. एंड शी फील्स रिलीव्ड आफ्टर सम बोलने के बाद. उसको थोड़ा चोट तो रहता है, बट मे बी शी फील्स लिटिल सेटिस्फाइड. ठीक है. तो द रेसिप्रोकेट, इफ यू talk in that way, the Lord reciprocates. So the Lord is a person. मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो है वो व्यक्ति है. ठीक है. और ये मैं आपको भगवत गीता के माध्यम से दिखाता हूँ. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ऑलरेडी. आई थिंक यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. तो भगवत गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 24. इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगा मैं, और इसका अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भवम आजनतो अजनंतो ममव्यम अनुत्तमम. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and now I have assumed this personality. Due to the small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. ठीक है. तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान निराकार है, अभी इस रूप में आ गए, but भगवान हमेशा spiritual is always there in a personal form. That is what we need to understand. And there is also another verse in the Bhagavad Gita. It says ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि मैंने ब्रह्मन का प्रतिष्ठा किया. ब्रह्मन मतलब जो सब बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में जानना है. ब्रह्म का प्रतिष्ठा भगवान से ही आया है. The ब्रह्म is basically the ब्रह्म ज्योति. It's referred to the ब्रह्म ज्योति, a light which is very big light. Light मतलब you can't compare it with the tube light का जो light आ रहा है. It is millions and millions. It is illuminating the entire spiritual world. भगवत गीता में एक वर्स है जो बोलता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे यहाँ पे हम लोग को लाइटिंग करना है तो क्या चाहिए, दिन में सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य है, रात में चंद्रमा है, और हमको लाइट चाहिए होता है. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी लाइट का जरूरत नहीं है. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड देयर. व्हाई? बिकॉज द भगवान के बॉडी से जो तेज निकल रहा है, जो ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, जो ब्रह्मन निकल रहा है,
वो सब कुछ अलौकिक कर रहा है ऑटोमेटिकली. देयर इज नो नीड ऑफ सन मून और एनीथिंग लाइक दैट. This light that is coming from the Lord is the impersonal aspect of the Lord, but it is coming from the person. जैसे सूर्य से सूर्य रेज आ रहे हैं, सन से सनशाइन आ रहा है, वैसे भगवान से ब्रह्म ज्योति आ रहा है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आ रहे हैं. तो ब्रह्म ज्योति जो 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 भगवान है, दैट इज द हाईएस्ट फीचर ऑफ द लॉर्ड. तो हमको भगवान का हाईएस्ट फीचर को समझना है. ठीक है, अगर कोई ये बोलता है, अगर मेरे को कोई ये बोलेगा अक्षय मतलब कि आपका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आई विल नॉट फील गुड, राइट. अगर हम बोलेंगे भगवान आपका कोई आकार नहीं है, आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो नहीं हो सकता है. इट इज नॉट प्लेजरेबल टू द लॉर्ड. इफ यू से दैट आप सिर्फ एक ज्योति, एक लाइट है, लाइट है आपके, लाइट आपसे आ रहा है. द सनशाइन इज कमिंग फ्रॉम द सन. दैट डजंट मीन देयर इज नो सन. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और जब भगवान का पर्सन होता है, एक पर्सन है, जैसे नीलेश एक पर्सन है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ नीलेश मेरे घर पे आओ, प्रसाद लो, मेरे से बातचीत करो, आपको मैं गिफ्ट दूंगा. ऑल दिस एक्सचेंजेस आर पॉसिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्रॉम लाइट टू लाइट, राइट. अगर एक लाइट को मैं ड्रेस अप नहीं कर सकता हूँ, लड्डू गोपाल जी को मैं ड्रेसअप कर सकता हूँ बिकॉज ही हैज अ फॉर्म, बट लाइट को मैं ड्रेसअप नहीं कर सकता हूँ. लाइट को मैं भोग नहीं दे सकता हूँ खाने के लिए, लाइट को मैं ब्रीदिंग नहीं कर सकता हूँ. बट व्हेन पर्सन आर देयर इज अ एक्सचेंज. इट इज पॉसिबल, द पर्सनल एक्सचेंज. एंड आप सब लोग सोचो कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. वी आर ऑल हैंकरिंग फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स. एंड व्हाई वी आर हैंकरिंग? बिकॉज वी आर missing the most important personal relationship, which is our relationship with the supreme personality of Godhead, Krishna. When we establish that relationship, we are trying to establish relationship with so many things in this world. So definitely we need to establish relationship at a personal level, which is required. But when we establish relationship with Krishna, then that will actually give satisfaction to the soul. Nothing else can give satisfaction to the soul except the relationship with Krishna. That is possible to the chanting of the holy names, to the reading of the Srimad Bhagavatam, to the understanding the Bhagavad Gita. तो भगवान हम लोग को ये बता रहे हैं यहाँ पे. इस वर्ष मैं ये आपको दिखाता हूँ. ये वर्ष आपने सबने सुना होगा. You want you can recite. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Wherever and wherever there is a decline in religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. Right? ये बताया हमने. ठीक है. And then we have this परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं. ये 2 वर्ष हमको पता है. इसके बाद एक वर्ष किसी को पता नहीं है. वो मैं वर्ष आपको दिखाना चाहता हूँ. 4.9 भगवद गीता का वर्ष 4.9. उसमें बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना. जन्म मतलब one who knows the transcendental nature of my appearance and activities. भगवान के जन्म को appearance बोला जाता है. It is the Lord's appearance. Lord Ramchandra appeared. Lord Krishna appeared. They don't take birth actually. तो ये बताया गया है कि जो इसको भगवान का जो दिव्य लीला है, transcendental means दिव्य लीला of appearing in his activities, does not upon leaving the body take his birth again in the material world, but attains my eternal abode, Arjun. तो ये अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में. आप अगर मेरा ट्रांसेंडेंटल नेचर समझते हैं कि मैं मेरा जो बर्थ है, मेरा जो एक्टिविटीज है, दे आर नॉट कंपेरेबल टू द नॉर्मल पीपल. एक और वर्ड है भगवद गीता में 9.11 आप देख लेना. इसमें बताया है कि फुलिश पीपल थिंक दैट व्हेन आई हैव डिसेंडेड दे कंसीडर मी एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. तो भगवान कभी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. और हम भगवान नहीं बन सकते. That also we need to understand. We are servants of God or parts and parcels of God. We're meant to serve the Lord always. And again, I'm saying the servant-master relationship is not like the slave mentality which we see in this material world, where we are forced to work. The living entity is by nature. जैसे शुगर का धर्म होता है स्वीट होना. ठीक है.
मछली को खुशी कहाँ मिलेगी? पेड़ पे चढ़ने से मछली को खुशी नहीं मिलेगी। मछली को खुशी मिलेगी पानी में जाने से, पानी में तैरने से। तो वैसे ही आपको, हम लोग सबको खुशी मिलेगी भगवान से जब हम कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड व्हेन वी कनेक्ट टू द लॉर्ड, इट डजंट मीन दैट वी बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट मीन्स वी डू आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ बेटर वे। अर्जुन, भगवत गीता अर्जुन को क्यों बोला गया? क्योंकि अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, बोला युद्ध नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, सामने मेरे पिता माँ खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, इनको मार के क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं, तुम सबको शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट एवरीवन एज अ बॉडी, बट यू आर एक्चुअली अबव द बॉडी, यू आर एक्चुअली गॉन बियॉन्ड दिस material. You have actually to understand that we are all the souls. आपके जो पितामह है, ये है, इनको तो डेथ होना ही है, एक्चुअली सब लोग मर चुके हैं, मैं सबको मार चुका हूँ, तुम एक निमित्त मात्र हो अर्जुन। तो यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको अपना ड्यूटी करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में अर्जुन को अपना ड्यूटी करने के लिए भगवत गीता बोला गया, दैट ही कैन डू हिज ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। सो नेवर मिसअंडरस्टैंड भगवत गीता, दैट भगवत गीता इज फॉर द साधुस, ठीक है। साधु है वो लोग भी भगवत गीता पढ़ेंगे, हम लोग के लिए भगवत गीता नहीं है, या भगवत गीता पढ़ने से साधु बनना पड़ेगा, नहीं। आप गृहस्थ आश्रम में रह के, फैमिली लाइफ में रह के अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा उदाहरण सेट कर सकते हैं, अच्छे लक्ष्मी कमा सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं अपने फैमिली लाइफ में, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और इसका एग्जाम्पल हमको लॉर्ड राम से मिलता है, जो हम अगली बार देखेंगे, अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि लॉर्ड राम ने इस एग्जाम्पल इसको दिखाया। ठीक है, इतने सारे चैलेंजेस थे अगर हम देखेंगे लॉर्ड राम के लाइफ में, और वो चैलेंजेस भगवान अपनी लीलाएं करते हैं ताकि हम लोग उससे सीख सकें। ठीक है, सो आई लाइक टू स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? Hare Krishna. Hare Krishna, yes. So I had a question about this last point you mentioned, that Bhagavad Gita was spoken so that we do our duty and we should not give up our duty, which is true. It's throughout the Bhagavad Gita that is mentioned. Times while trying to do this duty, I mean, we transgress that line, and people, have very little time for spiritual life. So that, as an example, someone may say that, okay, of course, maintaining one's family is one's duty, but how does he not get deluded with the fact that how much he needs, or how much he needs to do to maintain his family? Because now, living in today's world in the city, someone may think, where everyone is going after, someone may want a 3 BHK flat, and everyone's probably going after that. And then he might start to think, oh, even I need to get a 3 BHK flat, although he has a family of four, and maybe 2 BHK is way enough for him, and what he has right now is enough. But he may start thinking that 3 BHK is also his duty. So how does one... 3 BHK is also, sorry, 3 BHK is also? He needs to get it, and he may start, convincing himself that this is his duty only, that he needs to have. How does he not? How does he distinguish between, how much he needs and how much he wants, or how much he's trying to get for social convention or whatever? So how does that fine line stay? Yeah, very good question. So unfortunately, our education system has not taught us, and that is what is lacking. We cannot differentiate between need and greed. Like, when I was living in Bombay, we lived in a 1 BHK. Now, in our house here, we are living in a smaller city. We have 10 rooms. Can I sleep in 10 rooms? I sleep only in 1 room. And I basically,
मुझे वही नींद आ रही है जो वहां पे आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है. आई एम नॉट गेटिंग एनी difference, in Yeah. that way. Okay. Now, one thing is that, कि it's not wrong to be ambitious. कि हम लोगों को कुछ ambition होना है, कुछ gain करना है, grow करना है, that is fine. But grow is only in the terms of possessing more and more things is not going to change things. We need to understand what we really need. Okay? We have to differentiate between need and wants. We need to understand that. And if you're not able to understand that, then we need mentorship or guidance. That is the only way. Mentorship or guidance of someone who knows how to balance this need and wants. Not of someone materialistic who says that, the goal of life is to eat, drink, marry and earn money only. Okay? मैं जब बोला ड्यूटी करने के लिए, तो ड्यूटी करने का मतलब ये है भगवत गीता के हिसाब से कि आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है. अगर एक हाउस होल्डर है, ठीक है, हम लोग जो भी गृहस्थ है, अगर हम सारा पैसा कमा रहे हैं और सारा पैसा अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज crippled mentality. We need to use something for the society. It may be, social service, it may be for the temple, it may be for orphanage. We need to do something for the society as well. ठीक है, वो जरूरी है करना. और ये लॉ ऑफ नेचर है, मैंने देखा है ये चीज. ठीक है, आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, लाइक आई have seen people, who have taken teaching jobs, as devotees, have taken simpler jobs because they wanted to save time for spiritual life. That they have more time in spiritual life and they can have a peaceful life. और ऐसे जॉब में नहीं जाना चाहते जहां पे उनको एंजाइटी ज्यादा बढ़े. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्बिशियस ना हो. ठीक है, बट अगेन यू नीड टू चूज अ जॉब और चूज अ ड्यूटी विच इज कनेक्टिंग विद योर साइकोफिजिकल नेचर. ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको ड्यूटी को आपको करना है. उसमें आपको, अगर आपको आप जो कमा रहे हैं उसके हिसाब से, इफ यू आर एबल टू अफोर्ड अ 2 BHK और 3 BHK, इट इज फाइन. बट अगर आप 8 घंटे का जगह 12 घंटे या 16 घंटे काम करना पड़ रहा है, and you're not able to chant the holy name, you're not able to read the Srimad Bhagavatam, you're not able to associate with devotees, you don't have time to cook prasadam and you're eating in hotels, then that is actually murdering your own human form of life. तो balance करना बहुत important है. The key thing is balance. That is what we need to understand. Did I answer the question? Yeah, it did. Balancing is there, guidance is there. Guidance लेना चाहिए आपको, from someone who is experienced. And second thing is, balancing is the key. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चौल में जाके रहने लग जाओ. I'm not saying that. We have a certain lifestyle, we live that. But it is said, a common saying है कि when your earning increases, try to raise your standard of giving, not your standard of living only. ठीक है, अगर आपको वो पूरा बिलीव नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लो, लेकिन सिर्फ उसके पीछे मत भागो सिर्फ. Because 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK is not going to give you happiness. ठीक है, नीड है आपका, आपके फैमिली में 5 मेंबर है, आपको लगता है कि आज 1 BHK में, कल 2 BHK में जाना. ठीक है, आप 2 BHK के लिए प्रयास करो, 2 BHK लो, जरूरी है, रिक्वायर्ड है तो आप उसको लो. इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, इट्स अ नीड, यू प्लीज टेक इट, वर्क फॉर इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ. अपना स्पिरिचुअल लाइफ की कॉस्ट में वो मत लो, क्योंकि कल क्या होगा, इट्स वेरी, मतलब आपको सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन कल आपका 4 BHK होगा, लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस नहीं किया, एंड इफ यू लूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, देन you will be dragged on 4 shoulders from that same 4 BHK into the graveyard. It is a reality. तब आपका 4 BHK आपको काम नहीं आएगा. अगर आप दोनों चीज को बैलेंस करके आपको मतलब करते जाना है. एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक, लाइक मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल का क्या केस है, क्या नीड है, उसके हिसाब से करना पड़ता है. कई लोग को 2 जॉब करना भी पड़ता है, दे हैव सम मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड लोन्स एंड दिस एंड दैट. तो वो है. हम आगे चल के ये डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एवरीथिंग, हाउ टू do that. I myself taking training from Anand Vrindavan Prabhu on that, so from his lectures and from his hearing, so we'll try to discuss that sometime in future. आपको बैलेंस वे में रखना है, balance is the key. Yeah. Balance and guidance, दो चीजें. Anybody else, any question? General. So आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ सब चीज, लाइक एनी डाउट्स यू हैव और यू फील दैट इट इज नॉट करेक्ट एज पर अंडरस्टैंडिंग, लाइक नीलेश, आर यू कंफ्यूज्ड? सूर्यकांत जी, आर यू कंफ्यूज्ड?
आई होप यू आर क्लियर। और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। अगर थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा कोई बात नहीं, अगर आपको 70% भी क्लियर हुआ ना आज, तो नेक्स्ट 30% विल गेट क्लियर टू यू ग्रेजुअली। आप जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी देखते जाइए तो आपको ये क्लियर होगा। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन समवन सेज दैट गॉड इज नॉट अ पर्सन। गॉड इज अ पर्सन एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट। और भगवान के लाइक और एक चीज भी है कि भगवान लाइक हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान तो खा नहीं रहे, तो हमारा जैसे मुंह से हम खा सकते हैं। तो इट इज एक्सप्लेन्ड इन द स्क्रिप्चर, अंगानीय यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमान, व्हिच मींस दैट भगवान इज नॉट बाउंड कि वो आंख से ही देख सकते हैं और कान से ही सुन सकते हैं। ही कैन यूज एनी अदर सेंस फॉर एनीथिंग। तो भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। दैट इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, नॉट पॉसिबल फॉर अस इन दिस वर्ल्ड। और लिबरेशन के बाद ये पॉसिबल है कि जब हम भगवान के पास रहेंगे, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट challenges that we have in terms of birth, death, old age and disease, and अलग अलग तरह के मुक्ति होते हैं, मोक्ष बोलते हैं जिसको, where we can stay with the Lord in the same planet, we can have the same bodily features as the Lord, we can I think Navendra Prabhu, remember the 5 types of mukti? Actually I'm feeling hungry now so I'm not able to remember, my brain is not working, but बहुत technical था आज का session, so I was not prepared for that, I was prepared with stories. So there are 5 types of mukti actually. एक मुक्ति उसमें होता है जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में मर्ज करना, वो मुक्ति है, एग्जिस्ट करता है वो मुक्ति, but the devotees never desire that mukti because that is spiritual suicide. क्योंकि आप जब ब्रह्म ज्योति में मिल जाओगे तो आप भगवान से रेसिप्रोकेट आदान प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है? That is very very important. Like I and Nilesh, we can talk and interact with each other as long as we are 2 different persons. मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, कुछ we can exchange some words, we can exchange some gifts. It is possible when we are 2 different persons. जैसे ही एक का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, then वो पॉसिबल वो नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज वेयर वी अंडरस्टैंड दैट वी आर डिफरेंट पर्सन्स, वी ऑलवेज रिमेन इंडिविजुअल्स, आवर इंडिविजुअलिटी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, वी आर सोल्स नाउ, विल ऑलवेज बी सोल, एंड इन दिस सोल हम हमेशा भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। Yes, you're saying something, Navendra Prabhu? Yeah. He has mentioned that in the chat. So these are all the 5 types of mukti which are there, and but devotee कोई डिजायर नहीं करता है। डिवोटी का मेन पर्पस होता है मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है और जो बेस्ट है वही करे। बेसिकली ऐसे बोलते हैं तुलसीदास जी कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। दैट इज वेरी हाईएस्ट। आई एम नॉट सेइंग to artificially come to that platform. अगर आपको भगवान से कुछ इच्छा है मांगने की, जरूर मांगिए, आप भगवान से ही प्रार्थना करिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान से ही प्रार्थना करिए मांगने के लिए, ठीक है? कोई चीज कोई गलत चीजों का या इधर उधर मत जाइए वो लेने के लिए। आप भगवान से प्रार्थना करिए, अपना कोशिश करिए उस चीज को पाने के लिए सही तरीके से, और भगवान से प्रार्थना करिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्क्स एग्जाम में मार्क्स लाने हैं या आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए और आपकी इच्छा हो तो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। ऐसा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट हर सिचुएशन में भगवान का शेल्टर लेना है, डिफिकल्टी में भी, सुख में भी, दुख में भी, हमेशा। दैट इज इंपॉर्टेंट। मुक्ति मिले ना मिले, दैट इज अ डिफरेंट, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू डिजायर लाइक दिस, यू कैन डिजायर एंड यू कैन गो फॉर दिस, इट इज पॉसिबल टू गो इनटू दिस, बट डोंट डिजायर फॉर सायुज्य मुक्ति, मर्जिंग इनटू द ब्रह्मन फीचर ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना, तो आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद। एंड अब वहां पे ऐसा भी बताया जाता है कि हमारा आइडेंटिटी खत्म नहीं हो सकता है एक्चुअली। हम जब वहां पे चले जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, तो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद क्या होता है, आप एक लाइट भरे रूम में बैठे, कितना देर बैठेंगे आप वहां पे? द नेचर ऑफ द सोल इज टू बी एक्टिव। सोल का नेचर होता है एक्टिव होना। जब आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगा तो आप वापस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। अब ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपने भगवान का पर्सनल फीचर को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक हम भगवान का पर्सनल फीचर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भगवान एक पर्सन है, हम वैकुंठ में या भगवान के धाम में कृष्णा के पास नहीं जा सकते। जब अगर हम इम्पर्सनल फीचर को एक्सेप्ट करते हैं तो इम्पर्सनल में वहां पे जाएंगे, लेकिन अगेन वी नीड टू कम बैक टू दिस मटेरियल। हमको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि हम उस लाइफ में बैठ बैठ के बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नेचर एक्टिव होना है। और नेचर इज टू बी एक्टिव। एक बच्चे को, मैं अपनी बेटी को 5 मिनट बैठा सकता हूँ यहाँ पे, 5 मिनट बैठ जाओ, क्लास सुनो, 10 मिनट के 5 मिनट के बाद वो नहीं बैठेगी। शी हैज टू डू सम एक्टिविटी। Similarly, our nature is to be active. We cannot sit idle in a room. We need
to do service. The nature of the soul is to serve and be active. सर्विस करना है हम लोग. आप अगर ध्यान से सोचे कि हर आदमी किसी ना किसी को सर्व कर रहा है. कोई आदमी हो सकता है भगवान को सर्व कर रहा है, कोई आदमी माँ बाप को सर्व कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को सर्व कर रहा है, कोई बॉस को सर्व कर रहा है, कोई कुत्ते को सर्व कर रहा है. लेकिन एवरीबडी इज सर्विंग. दैट इज द नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी. हमको सबको सेवा करना है. वी वांट टू सर्व एवरीवन. तो हमको चूज करना है, हमको डिसाइड करना है कि हमको किसको सर्व करना है. So maybe these statements are heavy, but this is like the reality what I'm trying to present in front of you. Okay. So we'll end now. Thank you so much for joining. We'll meet again next week. And next week, yes. So we'll communicate the time. Mostly it will be on Saturday evening. We'll try to meet next week. And any questions or comments, please let us know in the group. I'll be very grateful if you share on the group your learnings for today. What did you learn? And if it is helpful for you. Okay. Yeah. Thank you very much. You can call me Akshay, no problem. Everybody here can call me Akshay by my first name, or you can call me Atul Goranga, my initiated name. It's fine. So we are all friends and we are learning from each other, and it's great to have you all on a Sunday evening. Thank you. So I'm ending now this meeting, and we'll meet next week. Thank you for Niladri. Thank you to Niladri Prabhu that he arranged the Zoom meeting. Thank you so much. Welcome, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.